کہ غریب کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے، 1 2 یا 3 نہیں، روٹی کی قیمت میں 10 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے قیمت بڑھانے کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا، نان بائی ایسوسی ایشن نے از خود ریکارڈ اضافہ کر دیا۔ غریب کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے، سرکاری ریٹ لسٹ میں روٹی کی قیمت 15 روپے مقرر، تندوروں پر 25 روپے کی فروخت ہونے لگی۔ ضلع انتظامیہ لاہور نے روٹی کی قیمت بڑھانے کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا، نان بائی ایسوسی ایشن نے از خود ریکارڈ اضافہ کر دیا۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن نے ضلع انتظامیہ کو درخواست جمع کروا دی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ روٹی کی سرکاری قیمت 25 روپے مقرر کر کے نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ آٹے کا ریٹ 80% بڑھانے سے روٹی کی قیمت 25 روپے بنتی ہے، موجودہ ریٹ پر روٹی کی فروخت ممکن نہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ غریب کے لیے 1 وقت کی روٹی بھی مشکل ہو گئی ہے، مہنگائی نے عام آدمی کا جینا محال کر دیا ہے۔ مہنگائی کو تو پر لگ رہے ہیں، غریبوں کا کوئی سوچ نہیں رہا، بس یہی ہے مہنگائی مہنگائی بس مہنگائی۔ آٹے کا توڑا پہلے 600 ملتا تھا، وہ 1200 روپے کا، تو غریب بندے کے لیے تو مشکل ہو گئی ہے نا۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کے صدر آفتاب گل کا کہنا ہے کہ اگر روٹی کا سرکاری ریٹ نہ بڑھایا گیا تو تندور بند کرنے پڑیں گے۔ آٹا اس قدر مہنگا ہو گیا کہ اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ ہمیں قیمت نہ بڑھانے کا کہا گیا ہے مگر یہ ممکن نہیں۔ مہنگائی کے وار لگاتار چکی آٹے کی قیمت میں 10 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا، فی کلو قیمت 150 سے بڑھ کر 160 روپے تک پہنچ گئی۔ غلہ منڈیوں میں گندم کی قیمت 5200 روپے فی من تک پہنچ گئی۔ اس سال بھی ماہ سیام میں وہی ہو رہا ہے جو گزشتہ سال ہوا۔ رمضان سے پہلے مہنگائی کے وار چکی آٹے کی قیمت میں 10 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا، قیمت 150 روپے کلو سے بڑھ کر 160 روپے کلو کر دی گئی۔ غلہ منڈیوں میں گندم کی قیمت 5200 روپے فی من تک پہنچ گئی۔ شہری پریشان ہیں، کہتے ہیں پہلے ہی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، اس پر آٹا بھی مزید مہنگا کر دیا گیا ہے۔ ماہ رمضان کیسے گزاریں؟ آدمی بیچارہ بہت پریشان ہے، 2 روٹی وقت کی کھانی بڑی مشکل ہے اس کے لیے۔ سر یہ آٹا مہنگا ہو گیا ہے، 10 روپے پہلے ہی مہنگائی بہت زیادہ تھی، ابھی حکومت نے اور مزید 10 روپے سے وہ مہنگا آٹا کر دیا ہے۔ غریب عوام جیسے وہ کیا کرے؟ شہریوں کا ماننا ہے کہ جتنا مرضی شور مچا لیں، اس حکومت سے مہنگائی کنٹرول ہونے والی نہیں ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ نگران صوبائی وزراء بلال افضل، ظفر علی اور کسان اتحاد کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے۔ کا پیکج کا ہے وہ دوبارہ اعلان کیا جائے، اور دوسرا صوبائی گورنمنٹ جو نگران سیٹ اپ ہے، ان کی ٹیم سے آج ہماری میٹنگز ہوئی جس میں ہمارا یوریا کھاد کا ایشو ہے، جس طرح ہمارے ڈیلر جو ہے نا مافیا ہے جس سے ہمیں وہ کھاد ٹائم پہ مل نہیں رہی اور شارٹیج ہے، اسی طرح نہری نظام ہے، لیسکو کا، میپکو کا، اور بجلی کے ایشوز ہیں جن میں جیسے کولڈ سٹور ہے آلو کا، اس میں ہمیں اتنا ریٹ لے رہے ہیں۔ اس حوالے سے آج ہماری پہلی دفعہ نگران سیٹ اپ کے منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، اور کمشنر صاحب بھی موجود تھے اور دوسرے عہدوں کے یعنی منسٹری کے لوگ بھی تھے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو انہوں نے 15 دن کا ٹائم دیا ہے، تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ 15 دن میں میرے کسان کے جو جائز ایشو ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اس ٹائم ملک بھی معاشی حالات میں اتنا گھرا ہوا ہے کہ ہم کسی طریقے سے اپنے ملک کو ڈسٹرب کریں، لیکن اب کسان اتنا بے بس اور مجبور ہو چکا ہے کہ اب اس کے مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اب اس کے خود پاؤں جل رہے ہیں، اس لیے اس کو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ لیکن اس ملک کی اگر ترقی کا کام کرنا ہے تو اس ملک کے لیے خوشحالی ڈیم، جس کو کالا باغ ڈیم کہتے ہیں، جب تک وہ نہیں بنے گا ملک آگے نہیں جائے گا۔ مجھے پتہ ہے کہ اتنا مہنگا بجلی اور ڈیزل سے، اتنی فرنس سے اتنی بجلی سستی نہیں مل سکتی، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارا کسانوں کے لیے کام ہو سکتا ہے۔ میں پرائم منسٹر صاحب سے اور صوبائی کابینہ سے، کمشنر صاحب اور اس پوری ٹیم سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا کے واسطے ہمارے جائز مطالبات ہیں اور آپ میرے جائز مطالبات کو۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان ریلیف پیکج کا آغاز ہو گیا۔ رمضان پیکج کے لیے 5 ارب روپے جاری کر دیے گئے۔ پیکج کے تحت 19 اشیاء ضروریہ پر سبسڈی دی گئی ہے۔ سبسڈائزڈ اشیاء کی خریداری کے لیے شناختی کارڈ لازمی ہوگا۔ وفاقی حکومت کا رمضان المبارک کے لیے بڑا ریلیف پیکج۔ رمضان پیکج کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کو 5 ارب روپے جاری۔ ریلیف پیکج کے تحت 19 اشیاء ضروریہ پر سبسڈی دی گئی ہے۔ سبسڈائز اشیاء کی خریداری کے لیے شناختی کارڈ لازمی ہوگا۔ رمضان ریلیف پیکج کے تحت بیسن کی قیمت 290 روپے سے کم کر کے 240 روپے فی کلو کر دی گئی ہے۔ کھجور 540 روپے کی بجائے 490 روپے فی کلو ملے گی۔ تمام برانڈز کے خوردنی تیل کی قیمت میں 20 روپے
फी लीटर कमी की गई है। रूह अफ़ज़ा 800 मिलीलीटर 296 की बजाय 266 रुपए में दस्तयाब होगा। जामे श्री 800 मिलीलीटर बोतल 290 से कम करके 260 रुपए कर दी गई। टोटा चावल 160 और बासमती चावल 270 रुपए फी किलो मिलेंगे। दाल मूंग धुली 315 रुपए से कम करके 295 रुपए फी किलो हो गई। दाल माश धुली 395 की बजाय 375 रुपए फी किलो होगी। दाल चना की फी किलो कीमत 255 रुपए बरकरार रखी गई है। 1.5 लीटर मशरूबात की बोतल में भी 15 रुपए की कमी कर दी गई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सार्फिन को घी 300, चीनी 70 रुपए फी किलो और 10 किलो आटा 400 रुपए में मिलेगा। आम सार्फिन को 10 किलो आटा 648 रुपए और घी 490 रुपए किलो मिलेगा। टारगेटेड सब्सिडी की मद में 3 अरब 84 करोड़ 45 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि 1 अरब 15 करोड़ 25 लाख रुपए इन टारगेटेड सब्सिडी दी गई है। कैमरा टीम के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। खबर शामिल करें। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उम्मीदवारों की अपीलों के लिए हाई कोर्ट के 10 एपीलेट ट्रिब्यूनल कायम कर दिए। जस्टिस अली बाकर नजफी पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल लाहौर डिवीजन के उम्मीदवारों की अपीलों पर समाअत करेगा। आपको बताया जा रहा है उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने का मामला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उम्मीदवारों की अपीलों के लिए हाई कोर्ट के 10 एपीलेट ट्रिब्यूनल कायम कर दिए। जस्टिस अली बाकर नजफी पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल लाहौर डिवीजन के उम्मीदवारों की अपीलों पर समाअत करेगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ज़मान पार्क में पीटीआई कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। ज़मान पार्क के अतराफ में ट्रैफिक दबाव का शिकार है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर से। जी मुबीन, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? ज़मान पार्क में जो है कारकुनान अब मुख्तलिफ जगहों से जो है पहुँचते जा रहे हैं। कैंप्स पे लोग दोबारा से लगाने का सिलसिला जारी था, अभी तक जारी है। कारकुनान मुख्तलिफ जगहों से जो है यहाँ पहुँचते जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले जो सियासी रहनुमा है उन्होंने भी मुशावरत की यहाँ पर, जो कि उन्होंने बताया था। फवाद चौधरी और परवेज़ खटक समेत जो है उन्होंने आके बताया कि मुशावरती इजलास भी जारी था ज़मान पार्क के अंदर इमरान खान से, जिसमें ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी बात की गई है ताकि तमाम पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने के बाद इलेक्शन के लिए जो है एक मनाया जा सके, ताकि इलेक्शन की तरफ बढ़ाया जा सके। इमरान खान का भी कहना था कि इलेक्शन कैंपेन करने का मौका नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ज़मान पार्क के हालात कशीदा कर दिए जाते हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद जो कि यहाँ पर मौजूद है, कारकुनान ने सिक्योरिटी इंतजाम भी यहाँ पर खुद संभाले हुए, लेकिन कारकुनान की आमद की वजह से ट्रैफिक का जो सिलसिला है वो भी जो है दरम बरम होकर रह चुका है, क्योंकि ट्रैफिक जो है अक्सर दबाव का शिकार नजर आती है। क्योंकि जब कारकुनान की गाड़ियाँ जो है ज़मान पार्क के एरिया में आके खड़ी हो जाती हैं तो ट्रैफिक जो है उसकी जो रवानी है मुतासर हो जाती है, गाड़ियों की जो है लंबी कतारें लग जाती हैं और ट्रैफिक दबाव का शिकार नजर आती है। ज़मान पार्क में मुतादिद मरतबा जो ट्रैफिक दिन के अंदर जाम भी यहाँ पर हो जाती है जब कारकुनान का रश यहाँ पर बढ़ जाता है, क्योंकि कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है मुसलसल तौर पर जारी है और कारकुनान ज़मान पार्क के मुसलसल आते हमें दिखाई दे रहे हैं। और सिक्योरिटी के इंतजाम भी कारकुनान ने संभाले हुए हैं। पुलिस की तरफ से या हुकूमत की तरफ से कोई भी सिक्योरिटी इंतजाम या सिक्योरिटी यहाँ पर फराहम नहीं की गई। इमरान खान की ज़ाती सिक्योरिटी भी जो है उनके अपने ही कमांडोज, अपने ही पुलिस एहलकार हैं जो उन्होंने खुद ही से हायर किए हुए हैं। अपने ही जो इनके पीटे के कारकुनान हैं वही हैं जो यहाँ पर सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। और ज़मान पार्क में इस वक्त सूरत हाल ये है कि कारकुनान की तादाद जो है यहाँ पर इकट्ठी होती जा रही है, क्योंकि इमरान खान ने जलसे की कॉल भी दी हुई है। कारकुनान की भी तादाद जो है यहाँ पर आना शुरू हो गई है। हमें उनके हाथों में पोस्टर्स नज़र आते हैं और पार्टी बैनर्स नज़र आते हैं और इश्तेहारात नज़र आते हैं और नारे मारते हुए कारकुनान फिलहाल हमें दिखाई दे रहे हैं ज़मान पार्क के इलाके में। जी मुबीन, ये बताइएगा कि कारकुनों की कितनी तादाद मौजूद है और सिक्योरिटी पीटीआई के वर्कर्स खुद संभाल रहे हैं? बिल्कुल, कारकुनान की तादाद जो है वक्तन फ़क्तन जो है मज़ीद बढ़ती जा रही है ज़मान पार्क के अंदर। और बिल्कुल सिक्योरिटी के इंतजाम जो है कारकुनान खुद ही देख रहे हैं। खुद ही कारकुनान ने चेक पोस्ट बनाई हुई है जहाँ से किसी को भी गुजरना पड़ता है तो कारकुनान खुद से जो उसकी चेकिंग करने के बाद उसको अंदर जान देते हैं। कारकुनान की एक डंडा बरदार फोर्स जो है वो भी यहाँ पर ड्यूटी दे रही है, मुख्तलिफ जगह पर ड्यूटी अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। उसके साथ साथ खुद ही से चेक पोस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर कुछ लोग जो है लोगों को चेक करने के बाद, तलाशी लेने के बाद अंदर जाने देते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पर जो है सिक्योरिटी असार कायम कर दिए गए हैं यहाँ पर, जिसको खुद ही से जो है कंटेनर लगाकर और बाकी खुद से चेक पोस्ट बनाकर जो पीटी के कारकुनान हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर सिक्योरिटी असार बनाए और वही सारे सिक्योरिटी के इंतजाम देख रहे हैं। वैसे पुलिस की तरफ से या हुकूमत की तरफ से यहाँ पर कोई किसी किस्म की सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबीन हैदर, आपने तफसीलन आगाह किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ज़मान पार्क में हंगामा आराई करने पर गिरफ्तार 26 मुलजिमान को शनाख्त परेड के लिए जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया।
इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के एडमिन जज अबहर गुल खान ने केस पर समाअत की। थाना रेस कोर्स पुलिस ने जमान पार्क में हंगामा आराई करने के इल्जाम में गिरफ्तार 26 मुल्जिमान को अदालत पेश किया। गिरफ्तार 26 मुल्जिमान के खिलाफ थाना रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत से इस्तदा की कि मुल्जिमान की शिनाख्त परेड के लिए जुडिशल रिमांड मंजूर किया जाए। अदालत ने वकला का मौक़िफ़ सुनने के बाद मुल्जिमान को शिनाख्त परेड के लिए 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पेशी के वक्त गिरफ्तार मुल्जिमान इमरान खान के हक में नारेबाजी भी करते रहे, जबकि इस मौका पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। इससे पहले पीर के रोज इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने गिरफ्तार 102 मुल्जिमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया था। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सरकारी अराजी अलॉटमेंट केस में अहम पेशरफ्त हुई है। एंटी करप्शन ने शोएब सिद्दीकी समेत दीगर मुल्जिमों को बेकसूर करार दे दिया। साबिक MP और दीगर ने जमानतें वापस ले ली। अदालत ने जमानतें वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। एंटी करप्शन कोर्ट के स्पेशल जज खालिद महमूद भट्टी ने समाअत की। शोएब सिद्दीकी की जानिब से आफ्ताब मुस्तफ़ा और उज़ैर साजिद एडवोकेट्स पेश हुए। एंटी करप्शन के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान को तफ्तीश के बाद बेकसूर करार दे दिया गया है। मुल्जिमान के वकला ने मौक़िफ़ अपनाया कि तफ्तीश में बेकसूर करार दिया गया है, लिहाजा जमानतें वापस लेने की इस्तदा करते हैं। शोएब सिद्दीकी समेत दीगर पर 55 केनाल सरकारी अराजी पार्क व्यू में शामिल करने का इल्ज़ाम था। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के ज़ेर एहतमाम सिविल इंजीनियरिंग में नए रुझानात पर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। मुहक्किकीन ने मजमूई तौर पर 21 मकाला जात पेश किए। यूनियन डेवलपर्स का बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडल हाज़रीन की तवज्जो का मरकज़ रहा। सिविल इंजीनियरिंग में नए रुझानात। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज 15 जबकि मजमूई तौर पर 21 तहकीकी मकाले पेश किए गए। कॉन्फ्रेंस में इंजीनियर्स और तामीराती शोबे से वाबस्ता ग्रुप्स ने शिरकत की और अपने मंसूबों से मुतालिक आगाह किया। ताहम यूनियन डेवलपर्स का बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडल सबकी तवज्जो का मरकज बना रहा। मुल्की व बैनुल अक़वामी इंजीनियर्स ने नए रुझानात पर रोशनी डाली और बताया कि दुनिया में अब जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से महफूज और कम लागत इमारतें बनाई जा रही हैं। इंजीनियर सुहेल किबरिया ने कहा कि यूसीपी के ज़ेरे एहतमाम कॉन्फ्रेंस का इनकाद खुशाइंद है। नौजवान इंजीनियर्स को फायदा होगा। सिविल इंजीनियरिंग के बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन और बहुत सारी चीज़ें हैं। कंस्ट्रक्शन मेथड्स हैं और मशीनरी है। तो इन सब में पाकिस्तान को अब नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं पाकिस्तान के। एक अपॉर्चुनिटी है कि हमारे इंजीनियर्स ट्रेन हो, जो पढ़ रहे हैं, जो फैकल्टी है और जो इंडस्ट्री है, वो सारी की सारी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करे और नॉलेज को डिसेमिनेट करे। यूनियन डेवलपर्स में इंजीनियरिंग विंग के सरबराह मोहम्मद एहसान का कहना था कि बीम सिविल इंजीनियरिंग में जदीद निज़ाम है। पाकिस्तान में सिर्फ यूनियन डेवलपर्स ही इसका इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और इंटरनेट की स्पीड और टेक्नोलॉजी और गैजेट्स ने अब हमको इनेबल कर दिया है कि हम अपने हमसाया ममालिक के साथ टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग बेस के ऊपर, डिटेलिंग बेस पे हम सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी कम्पीट कर सकें और अपनी सॉफ्ट स्किल्स को इन्हेंस करके उसको एक्सपोर्ट करें। हमें शदीद ज़रूरत है इस चीज़ की और इसको ग्रास रूट लेवल के ऊपर करने की ज़रूरत है। कॉन्फ्रेंस के दूसरे और आखिरी रोज 3 टेक्निकल सेशन हुए। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम नेस्पाक, यूनियन डेवलपर्स, इजहार ग्रुप और इत्तफाक ग्रुप के ताउन से किया गया। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़।